Okay class, we will discuss the working of human ear once more, and after that we will discuss what is the difference between amplitude, frequency, wavelength. Wavelength is not in your syllabus, only amplitude, time period and frequency is there. And you don't have to do numerical based on it, but in class, yeah, one numerical you have to do, that is time period is reciprocal of frequency, right? So first of all, I would like to discuss, this is the diagram of human ear. As you can see, the whole human ear is divided into three parts: outer ear, middle ear and inner ear. Okay? Outer ear, middle ear and inner ear. This portion is called pinna. Its function is to collect the sound waves, right? Whatever I'm speaking right now, your pinna is collecting all the sound waves. My sound waves are disturbing the air molecules, and further they are reaching to your outer ear. There is this ear canal which is 2 to 3 centimeter long. My sound waves are traveling through this. Further there is eardrum. When my sound waves will hit your eardrum, it will vibrate. It will vibrate, then only it will produce sound, right ना? As I have told you, ठीक है? तो मेरी जो भी आवाज है वो आपके ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगी. ये आउटर ईयर की वर्किंग है. अब जो मिडल ईयर है, इसमें 3 टिनी बोन्स हैं. हैमर, एनविल और स्टिरअप. दे आर कनेक्टेड विद वन अनदर, राइट? तो ये जो वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम जो है, फिर इन हैमर, एनविल और स्टिरअप को भी अपना साउंड सिग्नल फॉरवर्ड करेगा, राइट? Then we have this oval window here, and this is the inner ear. ये एक liquid होता है, wax type liquid. This part is called cochlea. Auditory nerve are there. Whatever sound signal is received by inner ear, they will send this signal to the brain with the help of this auditory nerve. Then further brain will decide whether we have to follow that instruction or not. Okay. This is about how our human ear works. Okay. One more thing I would like to tell you about. Suppose this is a sound wave. Can you please zoom on it? Yeah. This is a sound wave. Sound wave. This is a sound wave, right? Mainly this you will study in class 9, but I want to tell you what is the difference between amplitude, time period and frequency on the basis of that. Okay? This is a simple 2D geometry, 2-dimensional geometry. Sound wave is plotted, right? This is called sinusoidal variation. Sinusoidal, ये वेव ऐसे मूव कर रही है, ठीक है ना? साउंड वेव वेव की फॉर्म में मूव करता है. आप बेटा ध्यान से देखना, ये जो हाइट देख रहे हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसे कहते हैं क्रस्ट, और जो नीचे वाला वेव आपको दिख रहा है उसे कहते हैं ट्रफ. वैसे तो एक और यहाँ पर ट्रफ आप बना सकते हो. दैट अपर पोर्शन इज कॉल्ड क्रस्ट, CREST क्रस्ट, एंड द बॉटम वन इज कॉल्ड ट्रफ. ठीक है? ऐसे लगातार साउंड वेव प्रोड्यूस होती रहती है. मैं अगर लगातार बोल रहा हूँ, ठीक है? अब ये जो हाइट होती है ना किसी पर्टिकुलर क्रस्ट या ट्रफ की, दिस हाइट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. जितनी बेटा ये हाइट ज्यादा होगी उतना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, और उतनी मेरी आवाज ऊंची होगी. मैंने आपको पहले भी बताया, मेंस जितने भी मेल्स हैं उनकी एम्पलीट्यूड हाई होता है. ठीक है? फ्रीक्वेंसी की बात करें, 1 सेकंड में ये पूरा एक कंप्लीट वेव है यहाँ से यहाँ तक. मतलब एक कंप्लीट साउंड वेव कौन सी होगी? जिसमें एक क्रस्ट और एक ट्रफ होगा, राइट? एक क्रस्ट और एक ट्रफ होगा, उसे साउंड वेव कंप्लीट माना जाएगा. ऐसे जितनी साउंड वेव्स 1 सेकंड में किसी भी साउंड सोर्स से प्रोड्यूस होंगी, जैसे अभी जो मेरा साउंड सोर्स है, मेरा माउथ है, वो लगातार साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है. तो 1 सेकंड में जितनी साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी उसे क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे, राइट? अब फ्रीक्वेंसी को लोअर क्लासेस में एफ भी लिखा जाता है, स्मॉल एफ. ये ध्यान रखना. पर हायर क्लासेस में फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिखते हैं, न्यू, NU, न्यू. ठीक है? हो सकता है आपके टीचर आपको न्यू भी बोले, फ्रीक्वेंसी को कंफ्यूज मत होना. ठीक है? मैं फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू इसलिए नहीं लिखवाता, कई बार बच्चे वेलोसिटी, स्पीड ऑफ साउंड वेव और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है? पर आपकी मर्जी, आप न्यू लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं. अब टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय अ साउंड वेव टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन. मतलब जितना टाइम लगेगा किसी साउंड वेव को पूरा एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनाने में, उसे क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड बोलेंगे. ठीक है?
और टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला जो आपको न्यूमेरिकल करना है, टाइम पीरियड इज 1/f। और टाइम पीरियड, टाइम की यूनिट बेटा सेकंड है और f इसकी यूनिट फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी, f इज फॉर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है। आप लोग FM वगैरह सुनते रहते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्ज में होती है। 1 मेगा हर्ट्ज इज 10⁻6 हर्ट्ज, ठीक है। ऐसे जो टीवी सिग्नल है उनकी फ्रीक्वेंसी गीगा हर्ट्ज में होती है। आप लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज है, यू नो द डिफरेंस बिटवीन मेगाबाइट्स एंड यू नो गीगाबाइट्स। 1 मेगा इज 10⁻6 एंड 1 गीगा इज 10⁹, ठीक है। तो याद रखना टीवी सिग्नल जो है गीगा हर्ट्ज में होते हैं और रेडियो वेव जो अपनी रेडियो हम सुनते हैं FM वो मेगा हर्ट्ज में होता है, ठीक है। हर फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होगी। एक सिंपल सा ये यू नो रिलेशनशिप है जिस पर बेस्ड आपको 8th क्लास में न्यूमेरिकल करने हैं। जब आप 9th में आएंगे तो आपको वेवलेंथ पर भी करने पड़ेंगे, पर वो सब 9th क्लास में बात करेंगे। लैम्डा बता दूं, लैम्डा ये वेवलेंथ होती है, ये डिस्टेंस है एक क्रस्ट और एक ट्रफ में। अब ये भी वेवलेंथ हो सकती है बेटा, इनकी हाफ से लेकर इस अगली वाली की हाफ तक ये भी लैम्डा हो सकता है। पर अभी आपको लैम्डा के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, अभी आपको 3 ही चीजें पढ़नी है। फ्रीक्वेंसी जिसे न्यू भी कहते हैं, स्मॉल f से भी रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड की सिंपल डेफिनेशन आपको बताई दी, हाइट ऑफ अ क्रस्ट और अ ट्रफ, ठीक है। ओके, अब एक आध न्यूमेरिकल करके देखेंगे। सपोज आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 20 हर्ट्ज, हर्ट्ज को कैपिटल H स्मॉल z से डिनोट करेंगे। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 20 हर्ट्ज, तो टाइम पीरियड आपको कैपिटल T बताना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बेटा 1/f होता है, यानी कि 1/20, राइट। 1/20 ऐसे लिख लो, 1/2 इंटू 1/10। 1/2 इज 0.5, 0.5/10 यानी कि 0. थोड़ा सा यहाँ जूम करना, 0.05 टाइम पीरियड सेकेंड्स में होता है, याद रखना। तो अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड कितना आ रहा है, 0.05 सेकेंड आ रहा है। और सेम अगर एक न्यूमेरिकल ऐसे आ जाए जिसमें मान लो टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.5 सेकेंड्स और फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है, तो फ्रीक्वेंसी होगी 1/t होगी फ्रीक्वेंसी, और 1/0.5, ये पॉइंट हटा के 10 ऊपर 5 2 था, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 2 हर्ट्ज आ जाएगी, ठीक है। तो 8th क्लास में बेटा ये 2 सिंपल से न्यूमेरिकल हैं, या तो टाइम पीरियड दिया होगा, फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी दी होगी तो टाइम पीरियड निकालना होगा। ये अभी आप आराम से कर लेना, यही बोर्ड पे लिखे हुए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। यहाँ पर एक पेंडुलम का डायग्राम दिया हुआ है पेज नंबर 243 पर। पेंडुलम के डायग्राम से आप समझ सकते हैं। देखो पेंडुलम एक स्पॉट सपोर्ट से बंधा हुआ है, एक मेटल बॉब होती है, बॉल नहीं होती, बॉब, BOB बॉब होती है, और इसकी A सेंट्रल पोजीशन अगर पेंडुलम की दे रखी है, जैसे ऐसे ये पेंडुलम की बॉब है, ये इसकी सेंट्रल पोजीशन है, ये यहाँ बंधा हुआ है, और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी, ठीक है। मान लो B और C इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी। तो ये पेंडुलम ऐसे यू नो 9th क्लास में आप सीखेंगे, एनर्जी भी चेंज होती है अकॉर्डिंगली, पोटेंशियल काइनेटिक। पर अब याद रखना कि हर जो वाइब्रेशन, हर ऑसिलेशन होती है उसके 3 ही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो मैंने आपको बता दी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। पेंडुलम की हेल्प से आप ये चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल ऑलरेडी बता दिया, एक सैम्पल प्रॉब्लम और दिया, ध्यान दीजिए पेज नंबर 244 पर। अ पेंडुलम मेक्स 15 ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड। 15 ऑसिलेशन, ये ऑसिलेशन है, ये पूरी एक, समझ रहे हो, ये ऑसिलेशंस है। कोई भी पेंडुलम 15 ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी की यूनिट, ये फ्रीक्वेंसी की एक डेफिनेशन ये भी है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस पर सेकंड या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस पर सेकंड, ठीक है। तो 15 वाइब्रेशन 5 सेकंड में हो रही है, 1 सेकंड में कितनी होगी बताइए। 15 वाइब्रेशन 5 सेकंड में हो रही है, तो 1 सेकंड में कितनी होगी, 15/5 3, राइट, वेरी गुड। तो 3 ऑसिलेशन 1 सेकंड में हो रही है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3 हर्ट्ज, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, इसके बाद आते हैं 3 कैरेक्टरिस्टिक बड़े इंपॉर्टेंट है, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है। क्वालिटी ऑफ साउंड को टिम्ब्रे भी बोला जाता है, पेज नंबर 245 पे गिवन है, सेम 9th क्लास में भी है। लाउडनेस मैंने जैसे कि बताया आपको, ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस का जितना हाई होगा, मैंने बताया ना मेल्स की लाउडनेस ज्यादा होती है वॉइस की, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड ज्यादा होती है, मतलब क्रस्ट और ट्रफ बड़े बड़े से बनेंगे उसमें।
The loudness of sound depends on the amplitude of vibration of the vibrating object. अगर मैं ऊंचा बोलूंगा, तेज बोलूंगा, जितना ज्यादा तेज बोलूंगा उतना एम्पलीट्यूड हाई होगा, उतना बड़ा क्रस्ट बनेगा, ठीक है। तो लाउडनेस एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है पिच। पिच मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। और एक बात और याद रखना, पेज नंबर 246, loudness of a sound is directly proportional to amplitude of vibration of sound producing object। यानी कि एम्पलीट्यूड अगर डबल हो जाएगा तो लाउडनेस 4 टाइम्स हो जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के, ये याद रखना पॉइंट कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर के। सिंपल मैथमेटिक्स है ये और कुछ नहीं। अगर एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा तो लाउडनेस 4 टाइम्स गुना हो जाएगी। अगर एम्पलीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगा तो ये 9 टाइम्स, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ऐसे ही एम्पलीट्यूड अगर 1/2 होगा तो ये 1/4 हो जाएगी लाउडनेस, और एम्पलीट्यूड अगर 1/3 होगा तो ये 1/9 हो जाएगी। तो ध्यान रखना, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। और लाउडनेस साउंड की यूनिट क्या बताइए, कभी देखा है क्रैकर्स पे लिखा होता है पीछे डेसिबल, वेरी गुड। तो साउंड की यूनिट याद रखना डेसिबल है, स्मॉल डी और कैपिटल बी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी कैपिटल बी, डेसिबल, ठीक है, ये ध्यान रखना क्लास। अब बात करते हैं पिच की। पिच is that characteristic of sound by which we can distinguish between different sounds of same loudness। मान लो 2 साउंड वेव्स हैं जिनका लाउडनेस सेम है, पर फिर भी आप उनमें एक मेल की आवाज है, एक फीमेल की है, ठीक है। सेम लाउडनेस है पर पिच डिफरेंट होगी। पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, और फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा थी, मेल्स की फीमेल्स की, फीमेल्स की, ठीक है। और लाउडनेस किसकी ज्यादा थी, मेल की। और एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा था, मेल्स का, ठीक है। तो इसी से आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जिसकी पिच ज्यादा, मतलब वो ज्यादा स्पीड से वर्ड्स को बोल रही है। अगर मैं ऐसे बोलूं क्या कर रहे हो, व्हाई यू आर नॉट डूइंग दिस, व्हाई यू आर नॉट फॉलोइंग, तो यहाँ पर पिच ज्यादा है, मोर नंबर ऑफ ऑसिलेशन, मोर नंबर ऑफ साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस पर सेकेंड, राइट। तो ध्यान रखना कि किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो उसकी पिच भी हाई होगी, तो उसे श्रिल साउंड कहेंगे। यहाँ पर आप एक डायग्राम से देख सकते हैं, पेज नंबर 247 पर गिवन है। जैसे कोई ड्रम प्ले कर रहा है तो लो फ्रीक्वेंसी है, धीरे धीरे ड्रम प्ले कर रहा है। और अगर कोई फ्लूट बजा रहा है, सीटी विसल कर रहा है, तो ज़्यादा वेव्स निकलेगी, ठीक है ना। या जो बॉयज़ और गर्ल्स का मैंने आपको एग्जांपल बताया। क्वालिटी की बात करें, आप ऐसे 2 लोगों के बारे में सोचो, जैसे सिंगर्स हैं मान लो 2, आज के जैसे एक अरिजीत सिंह मान लो और एक सोनू निगम मान लो, या हिमेश रेशमिया मान लो, कोई भी 2 सिंगर है। सिंगर्स यू नो हर उस पे लाउडनेस को भी अपनी कम ज़्यादा कर सकते हैं, हर पिच पे भी गा सकते हैं, धीरे भी गा सकते हैं, तेज भी